गुड आफ्टरनून। आज हम आप लोगों के साथ हैं दो इशू पे डिस्कशन के लिए। एक, पोस्ट ट्रंप क्या इफेक्ट पूरी दुनिया में आ रहे हैं और क्या इफेक्ट इंडिया में भारत पे आएंगे। सो आई टेल द मोस्ट ऑफ द इफेक्ट विल कम टू द चाइना, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. India, Israel will be very less affected. Mainly, if you see, India is up to 25%, 26% tax. Other side, the China is approx 180%, 175% to 180%. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे टैक्स से इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम होगा। एक प्रॉब्लम, टेम्परेरी जॉब जा सकता है। दूसरा प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट गिर सकता है। तीसरा प्रॉब्लम, एक्सपोर्ट मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। फायदा क्या क्या है? फायदा ये है कि आपका टोटल जो एक्सपोर्ट यूएस का है वो करीब 90 बिलियन का है, 90 बिलियन। चाइना का करीब 800 बिलियन है, मतलब कम से कम 9 टाइम्स आपसे ज्यादा है। तो आपको उसमें से अगर 200 बिलियन भी मिल गया तो बहुत फायदेमंद है। दूसरा, आपका सेंस बहुत कम है एक्सपोर्ट, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चाइना से आपके ऊपर कम से कम 20% ही टैक्स है, चाइना कुछ 200% तक टैक्स जा रहा है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, इवन चाइनीज कंपनी जो इंडिया आएगी। और इतने इंफॉर्मेशन के साथ नाउ द फोरम इज ओपन फॉर यू ऑल गाइज, गो हेड। सारी इंटरनेशनल कंपनी जो है रिट्रेंचमेंट कर रही है, अपने स्टाफ को बंद कर रही है। Why this suddenly laying off our employees? I tell you, the two reasons are there. The one reason, lot of company was doing the book building. Means US have a very good rating. So once you have a client from US and Europe, you get a cheap money, very economical money. So to show the growth, to show the book building, they was keeping lot of manpower, lot of artificial manpower was there, like work from home. Lot of people was there who was on payroll but getting only 20-30%. So now when US decided to put a lot of taxes, so the company are now bound to shift to the other market. When you are going to other market, your rating will be down, lenders will be limited. So you have to do your optimum performance. You have to utilize your resource well. That's why if you are looking, what if I understood rightly, you are referring to Netherlands, Sweden, France, China. But I don't feel India will be that much affected. So mainly 1600, 1700 workers are, uh, um, say, they are out of job in Netherlands, and some 80, 90 jobs from the Google, and some 1700 jobs from the Tata. But if you see the better prospects, it's very good for the India, very good for the Australia, very good for Israel, and difficult situation for China. And this entire problem started because of the China, because China was not allowing any company to operate in China properly. Google is not allowed, WhatsApp is not allowed, uh, X is not allowed. Uh, Almost no US companies are allowed properly. On other side, China was printing money daily. They are daily printing money, and they are giving heavy subsidies, and they are going on bulk production. So their costs are lower, and by one they are acquiring global market. And once they are acquiring, they are sending the army. They are sending boat, like today also they are doing something in Cambodia. They are doing something in other countries. So I think this bitter pill, if we say in a Trump voice, this bitter pill was very much required. And the good news is they have already hold the taxes till 90 days, and they given time to India to discuss this and sort out the issue. सर, Yeah. मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि अगर इतनी बड़ी कंपनी है तभी भी इसको टॉप से क्यों निकाल रहे हैं? ओके, गुड क्वेश्चन। गूगल बड़ी कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं।
बट बड़ी वो बनी क्यों? क्योंकि उसने अपना जो रिसोर्स है, इंक्लूडिंग पैसा, अपॉर्चुनिटी और मैन पावर, उसका जो यूटिलाइजेशन है उन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से किया। इसकी वजह से वो बहुत बड़ी बनी और लगातार बड़े बनने के लिए आपको अपनी कंपनी लगातार रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। बट इसके साथ एक चीज आप ध्यान रखिए, हर छटनी एक नई उड़ान की जमीन होती है। हर जब आप नौकरी से निकाले जाते हो या जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, तो हम इसको बोलते हैं कि आप एक नई उड़ान के लिए निकलते हो। जैसे साइबेरिया से बहुत सारे पंछी आते हैं झाड़ी में, तो हमेशा नया सीख के जाते हैं। तो इसको पूरी तरह नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए कि जिन लोगों ने गूगल में काम किया है, उन्होंने सीखा है बहुत कुछ। अब भारत सरकार, अभी आपने देखा होगा पीयूष गोयल का इंटरव्यू था कि पीयूष गोयल जी कह रहे थे कि हमें डिलीवरी, खाना बनाना, कुकीज बनाने से बाहर निकल के टेक के स्टार्टअप शुरू करने चाहिए। तो ये पर्पज यही है कि अब जो लोग निकलेंगे वो नई गूगल कंपनी जैसी बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक नई उड़ान की पहचान है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जो कंपनियां छटनी करती है इस बार की, इससे पहले कई साल पहले भी की, जब जब एक राजनेता अनुराग ने बनते हैं तो ये छटनी वाला समस्या हर बार पैदा होती है, इसका कैसे समाधान है? अनिल जी, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा सवाल आपका। नंबर एक आपको बताऊं, नौकरी जा सकती है पर हुनर नहीं जा सकता। तो हर बार जब आप नौकरी से निकाले जाते हो तो अगली बार आपको 90% चांस है कि बहुत बेहतर मिलेगा। दूसरा आपको बताएं, जो बदलता है वही टिकता है। अगर कंपनीज लोगों को नौकरी से निकालेंगी तो ही वो टिकी रहेंगी, तभी वो दूसरे लोगों को, नए लोगों को चांस मिलेगा। और तीसरा बताएं, हर छटनी, जैसे मैंने पीछे भी बोला कि हर छटनी एक नई उड़ान की जमीन देता है। हर छटनी जो है आपको नई अपॉर्चुनिटी देता है, नई उड़ान देता है। और आपको बताएं, इन द एज ऑफ एआई availability, it is a very much necessary that company have to redesign their manpower, and लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं ये चौथी कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूं कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एआई सीखें। आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, हम जब छोटे छोटे थे तो हमने देखा था जब कंप्यूटर आ रहा था तो लोग बोले कि अभी मेरे को क्या कंप्यूटर सीखना। वो लोग 5 साल में, मतलब इवन वो रेल का टिकट नहीं बुक कर सकते थे, वो लोग इवन प्रिंट आउट नहीं ले सकते थे। इसलिए आज का जो समय है, एवरेज आदमी 90 साल तक जीने वाला है। इसलिए सबको बिना किए रात में 2 बजे उठना पड़े तो उठिए और टेक्नोलॉजी को 2 घंटा अपनी जिंदगी का दीजिए। इसलिए नहीं कि आपकी नौकरी बची रहे, इसलिए भी जरूरी है कि आपको आपकी जिंदगी में कल को अस्पताल एआई से बुक होगा, रेलवे टिकट एआई से बुक होगा, वीडियो एडिटिंग एआई से होगी, आपके भाई बहन, बेटा बेटी, उनको मैसेज देना लेना एआई से होगा। अगर आप इस दौड़ में पिछड़ गए, तो दुबई के शेख ने बोला था कि तीसरी जनरेशन वापस ऊंट पे चलेगी। उनसे पूछा गया था तो उन्होंने बोला कि जो मेरे बाबा थे वो ऊंट पे चलते थे, पिताजी मर्सिडीज पे चलते थे, मैं मर्सिडीज जीएल पे चलता हूँ, मेरा बेटा रेंज रोवर पे चलता है, उसका जो बेटा होगा वो मसराटी पे चलेगा और फिर जो उसका बेटा होगा वो वापस ऊंट पे चलेगा। क्यों? हर मजबूत आदमी के नीचे एक मजबूत आदमी पैदा होता है, उसके बाद कमजोर आदमी पैदा होता है, फेल कर जाता है। तो आप सब, जितने लोग आप हो, आप फेल ना हो, आप वापस ऊंट पे या गधे पे ना चले जाओ। इसलिए अपने को इक्विप्ड करो, जिद करो इक्विप्ड करने का। जो काम आपके नहीं भी है, लाइक से आज डिजिटल मीडिया का जमाना है, वीडियो एडिटिंग आपका काम नहीं है, वॉइस रिकॉर्डिंग आपका काम नहीं है, प्रेजेंटेशन बनाना आपका काम है, जिद करके सीखिए। कुछ नहीं होता, फेस्टिवल का प्रेजेंटेशन बनाइए। वो क्या होता, जो हमारा ब्रेन है अनिल जी, वो सिर्फ 20% यूज होता है। तो 50% से ऊपर यूज करने के लिए क्या करना चाहिए? क्विज बनाना चाहिए, रोज नए नए काम करना चाहिए। अगर आप राइट हैंड वाले हैं तो लेफ्ट हैंड से ब्रश करना चाहिए, लेफ्ट हैंड से कपड़े उठाना चाहिए। 2 दिन राइट हैंड से उठिए, 2 दिन लेफ्ट हैंड से उठिए। इससे क्या होता है, ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपको जवान रखती हैं। जवान जब मैं यहां बोल रहा हूं तो यू विल बी यंग बाय योर ब्रेन
एंड यू विल बी यंग बाय योर हार्ट। दोनों तरीके से जवान रहेंगे, और जवान रहेंगे तो ही मजा ले पाएंगे, कमाई का भी और मौसम का भी। राइट? हैं आप सेटिस्फाई हैं एकदम? थैंक यू, थैंक यू। सर, हमारा एक सवाल है इसमें, who will be the most affected in this new corporate landscape? गुड सवाल। अगर हम देखें, जो जहां मैं मेंटरिंग कर रहा हूं, चीफ स्ट्रेटजिस्ट हूं, एलबीएस आईएएस एकेडमी का रिसर्च देखें और केयर फिनडेस्क का रिसर्च रिपोर्ट देखें, और अगर इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट लाइक सीए समीर बालूसरे का रिपोर्ट देखें, संदीप महेश्वरी का देखें, प्रिंस भाई त्यागी के वेंचर स्टूडियो को देखें, और जो बड़े सर्वे जागोनारी फेडरेशन ने कराए हैं, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो कंपनीज का साइज बहुत बड़ा है और जो एक्सपोर्ट पे काम कर रही हैं वो ज्यादा इफेक्ट होंगी। दूसरा, जो कंपनीज सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग था, वीडियो रिकॉर्डिंग था, वीडियो एडिटिंग था, वो कंपनीज प्रभावित होंगी। बट जितने लोग भी जॉब से निकल रहे हैं उनके पास 3 गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है अगर वो अपने को अपडेट ना कर दें। एंड अगर बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ना हो तो आईटी मद्रास या हम जो स्टार्टअप वेंचर चला रहे हैं वहां वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और हम लोग उनको बेयर मिनिमम मतलब 20,000 से लेकर 40,000 का स्कॉलरशिप देते हैं और उनको सीड कैपिटल भी देते हैं अपना बिजनेस चालू करने के लिए। बस ध्यान क्या रखना है कि अगर आप अपना बिजनेस करने निकल रहे हैं तो लग्जरी नहीं मिलेगी कि आपके नीचे का ऑफिसर कुछ काम कर देगा, मतलब आपको ही मिसाइल मैन बनना पड़ेगा। जैसे रघुनाथ माशेलकर जी थे, भटकर जी थे, अबुल कलाम आजाद थे, नारायण मूर्ति जी थे, आपको ही कंप्यूटर मैन मिसाइल मैन बनना पड़ेगा। झाड़ू भी आपको खुद ही मारनी पड़ेगी, लेटर ही खुद बनाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन भी खुद बनाना पड़ेगा। और अगर आप सोचें कि आपको उतनी पगार मिलेगी जो आपको पहले मिल रही थी, तो स्टार्टअप में वो पगार नहीं मिलेगी। स्टार्टअप में सिर्फ आपका घर का खर्चा चलता रहे इन केस अगर आप फाइनेंशियली ट्रबल में हैं, या फिर आप जॉब अपने को अपग्रेड करके जॉब ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है सर। थैंक यू। सर, और एक सवाल का जवाब चाहिए। आज इंडियन स्टार्टअप एंड फाउंडर्स सेव फ्रॉम दिस ग्लोबल वेव, एंड हाउ यू फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कैन हेल्प? ओके, सो जहां तक मैं समझा, आई अंडरस्टूड यू आर लुकिंग ए employment prospects and other you are looking as a job opportunity prospect, means आपके एक सवाल में 2 सवाल हैं। अगर हम पहला सवाल देखें कि कैसे जो है इंडियन कंपनी सेफ हैं, तो अगर मैं रिपोर्ट पढ़ूं एलबीएस आईएएस एकेडमी का, और अगर रिपोर्ट में पढ़ूं वेंचर स्टूडियो कैपिटल का, और अगर मैं रिपोर्ट पढ़ूं केयर फिनडेस्क का, तो उनमें एक सिमिलरिटी मिलती है। वो सिमिलरिटी क्या मिलती है कि जो बदलता है वही टिकता है। तो ऐसे में यू मस्ट अडॉप्ट वेदर टेक्नोलॉजी, वेदर अपॉर्चुनिटी। सो इसमें इंडियन कंपनीज का जो अच्छा पोर्शन है कि इंडियन कंपनीज को चांस मिलेगा नए नए एक्सपेरिमेंट करने का, और इंडियन प्रमोटर्स को अपनी कंपनी का ऑपरेशन को इफिशिएंट करने का चांस मिलेगा। तो ये 2 फायदे उनको होंगे। और नुकसान ये होएगा कि जो इंडियन कंपनीज टोपी घुमा रही थी, जो इंडियन कंपनीज सप्लायर और बायर मैनेज कर रही थी, जो इंडियन कंपनीज ने वर्किंग कैपिटल निकाल के घर बना लिए हैं, बेटी बेटे की शादी कर दी है, या बेटे को सीईओ बना दिया है, या बीबी को एमडी बना दिया है, उनके लिए मुश्किल सिचुएशन है। बट जितने फेयर बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास मेरिट्स है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका आया जॉब का। अगर आप देखेंगे तो भारत में नई न्याय संहिता भारत सरकार ने लगाया है, और नई न्याय संहिता में एविडेंस का, फोरेंसिक का बहुत यूज है। तो सरकार का ये है कि करीब आप देखेंगे तो 8 से 9 लाख नई जॉब सरकार देगी फोरेंसिक में, और करीब करीब 20 लाख जॉब प्राइवेटली जो है निकलेंगे, जो प्राइवेट कंपनीज करेगी। अब यहाँ फोरेंसिक में इतनी जॉब क्यों आएगी? क्योंकि सरकार अभी जो फिजिकली जाते थे हम एविडेंस देने कोर्ट्स में, उसको मिनिमाइज कर रही है, और करीब आप मोटा मोटा पकड़े तो 800 नए फोरेंसिक सेंटर बना रही है हर जिले में,
हर जिले में फोरेंसिक सेंटर होगा, बड़े जिले में 2 फोरेंसिक सेंटर होगा, तो पुलिस और कोर्ट डायरेक्ट उनसे रिपोर्ट ले सकती है। इसलिए अगर आप फोरेंसिक में देखें तो करीब 30 लाख जॉब का अपॉर्च्युनिटी है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि आप बहुत सारी कंपनियों को मेंटर करते हो, वेंचर स्टूडियो कैपिटल को भी आप मेंटरशिप दे रहे हो, जो कि बहुत सारी कंपनीज ने फंड कर चुकी है, स्टार्टअप्स में स्पेशली। तो मुझे बताइए अभी स्टार्टअप्स के लिए क्या सिचुएशन है, क्या फ्यूचर है? मैडम अगर आप देखेंगे तो जब से मैंने बिजनेस छोड़ा 2012 से अब तक करीब मैं 250 कंपनीज को, स्टार्टअप को मेंटरशिप कर चुका हूं और करीब उसमें से 100 कंपनीज के लिए मैंने अपने दोस्तों से, बाकी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से पैसे भी लाके दिए हैं। उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज 500 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच हैं और कुछ कंपनी ऐसी हैं जो 50 से 100 करोड़ के हैं। स्टार्टअप के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टार्टअप हैव अ मैसिव अपॉर्चुनिटी बिकॉज आपका कास्ट ऑफ ऑपरेशन कम है, सारे यंग हैं, कास्ट ऑफ ऑपरेशन कम है, सब टेक्नोलॉजी प्रूव है, सब मैक्सिमम लोगों को टेक्नोलॉजी में खूब इंटरेस्ट है और मैक्सिमम लोग बहुत विजनरी हैं। तो स्टार्टअप्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली हमको लगता है केयर फिनिक्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, एलबीएस आईएएस एकेडमी के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर कुछ फेल्योर आता है तो हमने बहुत सारे लाइक माइंड पीपुल के साथ मिलके एक फाउंडेशन बना रखा, उसको हम वन मोर चांस बोलते हैं। तो ये लोग जो फाउंडेशन में है, जागो नारी में या टाटा फाउंडेशन में या नारायण मूर्ति फाउंडेशन में या वन मोर चांस में, ये लोग उनको बोर्ड पे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरीके का हेल्प देते हैं। Sir, as a professional, I have one question. What can professionals do to stay secure in such uncertain times? Yes, it's a good question, Malse Saab. The professional means, they are good in skill, they are good in their field, and they are well informed and well updated. In this situation, professionals have a great opportunity to make money, to upgrade themselves, especially when the new startups are there. In a traditional business, professional have a less role, but in new startup, professional have a role in every step, especially chartered accountant, architect, company secretary, doctors, engineers. They have a great role because the entire globe, entire horizon is shifting towards the professionalism. And if you see, we have a NGO federation called One More Chance. Under that NGO, we reskill and reinvent. And our focus is let of professionals become AI hybrid role professional for the next economy. Means if you are a chartered accountant, you must also know how to analyze the balance sheet for the placement. Like if you see in India, 95% CFO and director finance are from IMs. But if you see the technical analysis, processing is a much better than any IMs. Most of the chartered accountant are much better. So now the chance have come, chartered accountant can equipped with the improved AI tools, can equipped with the advanced AI tools and grab that opportunity. And IMs guys can upgrade themselves and start writing a software guys and can upgrade themselves and they start writing a specialized software on medical and astronomy. So whatever your untapped resource like heavy rain harvesting, wastage of food, this all can be now minimized by using the hybrid kind of the skill. So this era is AI ready, hybrid role professionals, and you have to reskill yourself and you have to reinvent yourself. और फिर मैं यह दोहराऊंगा, हर छटनी एक नई ऊंचाई की जमीन देती है. एंड in the age of AI, adaptability is your resume. It's a part of your resume. And
आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी नौकरी है। जितना बड़ा सोचेंगे, जितना फियरलेस होंगे, उतने ज्यादा आपको ऑप्शंस मिलेंगे और उतनी ज्यादा आपको नौकरियां मिलेंगी। और मालसे साहब ध्यान रखिएगा, आपका काम जा सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है, लेकिन आपका हुनर कोई नहीं आपसे छीन सकता। इसलिए अपने हुनर को, और मैं आपके थ्रू, आपके माध्यम से सारे जो यहां प्रोफेशनल्स हैं, सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि री इन्वेस्ट इन योर करियर, री इन्वेस्ट योर सेल्फ। जैसा मैं बार बार कहता हूं, हर 100 रुपए में 30 रुपए अपने पे खर्च करिए, 30 रुपए की सेविंग करिए और 40 रुपए परिवार में, दोस्तों में खर्च करिए। इससे क्या होगा, 5 साल बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि परिवार और दोस्त खर्च करते करते परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आप गाड़ी का इंजन है, जितना अच्छा इंजन होगा, जितना अपडेट इंजन होगा, गाड़ी की लोड बेयरिंग कैपेसिटी और गाड़ी की स्पीड उतनी अच्छी होगी, गाड़ी उतने ज्यादा समय पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। सेटिस्फाइड मालसे साहब? Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। सर अभी बीच में वेइंग ऑफ स्टॉक की बात निकली थी, उसमें आई एम हैविंग अ क्वेश्चन। बोलिए ना। Are companies considering emotional and mental health when laying off staff? वेरी सीरियस क्वेश्चन है मालसे साहब। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले 20 सालों में इमोशन एंड मेंटल हेल्थ इज अ बिग चैलेंज, बिकॉज यू हैव मूव आउट फ्रॉम द जॉइंट फैमिली, यू स्टार्ट गिविंग लेस टाइम टू द फैमिली एंड लेस टाइम टू फ्रेंड। अगर आप चार्ट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं अपनी टीम से भी बोलूंगा को एक बार स्क्रीन पे चार्ट दिखा देंगे आपको। 1950-51 में हम 50% समय परिवार के साथ और 30% समय दोस्तों के साथ देते थे। आज की डेट में हम करीब 8% टाइम परिवार के साथ और 4 से 5% टाइम दोस्तों के साथ दे रहे हैं। तो एक जो इमोशनल आपको थेरेपी मिलती थी, बैकअप मिलता था, एक वो कम हो रहा है। एंड दूसरा, आपको टफ डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। पहले क्या होता था, डिसीजन के लिए टाइम मिलता था, किताब पढ़ते थे, कॉपी पढ़ते थे। अभी एआई ने, मशीन लर्निंग ने ये सब आपके फोन पे, आपके आईपैड पे कर दिया, और फाइनली तो डिसीजन आपको लेना और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी आपको करना। तो एक जो प्रॉब्लम है ये है, बट अगर आप इसको देखेंगे तो इसको आप कैसे निपट सकते हैं, आप इसको एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस बना सकते हैं। दूसरा, आप नेचर के करीब जाके, दोस्तों के करीब जाके, लाइक आप डिसाइड कर लें कि 9 बजे, 9:30, 10 बजे आप फोन बंद कर दें। अगर रात में आपका जॉब अलाउ नहीं करता फोन बंद करना, तो दिन में 2 घंटे फोन बंद कर लें। और दोस्तों के साथ, बजाय वो व्हाट्सएप पे मैसेज मारने के या वो ई कार्ड भेजने के, दोस्तों के साथ मिलिए, दोस्तों के साथ मिलिए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए। और छोटे छोटे, कभी आप उनको अपने घर पे बुलाइए, कभी आप उनके घर जाइए, कभी जो है बड़ा पाव खाने चले जाइए, कभी भेलपूरी खाने चले जाइए, कभी मद्रास कैफे बालकेश्वर चले जाइए और उठाइए, कभी पनवेल चले जाइए बड़ा पाव खाने, कभी कोल्हापुर चले जाइए मिसल पाव खाने। तो ये क्या करेगा, आपको 360 डिग्री कवरेज देगा। और ये कवरेज, हम लोग का 2 दिमाग होता है, एक विजिबल एंड दूसरा इनविजिबल। सो जो आपका अलौकिक माइंड है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो चार्ज होता रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, अगर आपके हाथ पे पिल लग जाए, हाथ हटा लेते हैं, सांप दिखे तो डिफेंस कर लेते हैं, आग दिखे तो भाग जाते हैं। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये अगर आपका चार्ज है तो आपको इमोशनली बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। और ये कैसे चार्ज होता है, जैसे मैं किसी के बारे में बुरा सोचूं, मैं इनके बारे में बुरा सोचूं कि भाई इनका कुछ बुरा हो जाए, इनके बारे में बुरा सोचूं कि कुछ बुरा हो जाए, अब सब कॉन्शियस माइंड मेरा चार्ज हो गया। अब इनका तो मैं बुरा कर नहीं पाया, तो आपका बुरा करूंगा। तो अब मैं बाहर वाले का बुरा नहीं कर पाऊंगा, तो अपनी बीवी का बुरा करूंगा, अपने साले का बुरा करूंगा, अपने बेटे का बुरा करूंगा। अब मतलब 2 बच्चे हैं तो एक को बुरा करूंगा, एक को ठीक करूंगा। माता पिता हैं, बहन है, तो एक का बुरा करूंगा, एक का अच्छा करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने जहर बना लिया है तो कहीं तो कंज्यूम होगा जहर।
इसलिए बार बार मैं कहता हूं सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करो। और गीता में कहा भी है हत्या करना उतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना हत्या के बारे में सोचते रहना। मतलब गुनाह करने से ज्यादा गुनाह है गुनाह के बारे में हरदम सोचते रहना। कॉन्स्पिरेसी, इसलिए अगर आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता में भी अगर आपने हत्या की है तो 14 साल की सजा है। बट अगर हत्या कॉन्स्पिरेसी 120 भी है, 302 120 भी है, तो फांसी है डायरेक्ट। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को, मतलब ये आपके अलावा भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत पॉजिटिव रखो, सबकॉन्शियस माइंड को पोल्यूट ना होने दो। और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा है तो मैं दावे के साथ कहता हूं मालसे साहब कि 90% अच्छा ही होता है। इसीलिए अपने धर्म में लिखा है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठो, सूर्य को प्रणाम करो, पृथ्वी को प्रणाम करो, भू देवता को प्रणाम करो, पानी को प्रणाम करो, हवा को प्रणाम करो। मतलब यू आर ए थैंकफुल टू एवरीवन। आपके जिंदगी में जिसने भी छोटा से बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है, चीटी ने भी अगर योगदान दिया है तो यू आर ए थैंकफुल टू हिम एंड डिस्चार्ज योर सबकॉन्शियस। आई मस्ट से प्रॉब्लम कितने भी कॉम्प्लेक्स हो, आपके जवाब बहुत सुने हुए हो। थैंक यू वालसी सर, थैंक यू वालसी। Sir, what is your final message to professionals who are facing this wave of retrenchment and Trump trade बारे में? भाऊ, फाइनल में कई बार बता चुका। आपका ये सवाल सारे स्टार्टअप्स के लिए और सारे बिजनेसमैन के लिए, बाकी भी लोगों के लिए, सपने वो नहीं हैं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो पहला चीज क्या है? आत्मनिर्णय एंड बड़ी सोच। कोर स्ट्रेंथ इज यू एंड योर कॉन्फिडेंस एंड थिंक बिग। एंड जो बदलता है वही टिकता है। फास्ट बदलिए अपने आप को एंड यू मस्ट अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। यू हैव टू बी adaptive, like how in winter you wear coat and sweater and in summer t-shirt and cotton shirt. So my message to all professionals and all people, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, यहां मैं कहना चाहूंगा जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकर है, वो आपसे पूछे। आप इतना वैल्यू एडिशन करो कि दुनिया आपको मिस करे, आप दुनिया को मिस ना करो। एंड ये बहुत आसान है। एक मेहनत करनी पड़ती है निकम्मा बनने के लिए और एक मेहनत करनी पड़ती है स्टार बनने के लिए। तो जो निकम्मा बनने वाली मेहनत है वो आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए छोड़ दो। अच्छा बनने के लिए आप भारत के लिए, भारत मां के गौरवान्वित पुत्र बनो और आपको भारत रत्न जैसा पुरस्कार मिले, पद्मश्री मिले, पद्म विभूषण मिले, आपको नोबेल अवार्ड मिले। ये मेरी शुभकामना सारे प्रोफेशनल्स के लिए है और देश के सारे इन्वेस्टर्स के लिए है। फिर मैं दोहराऊंगा, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है। यहां मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिर्फ अपना एटीट्यूड बदलना है। आप एटीट्यूड बदलेंगे, अगर आपको नहीं मिलता है तो उससे बेहतर, मतलब आप ये सोचिए कि आपकी कंपनी, भगवान, अपॉर्चुनिटी, नेचर आपको उससे बेहतर देना चाहता है। थोड़ा और ज्यादा प्रयास करिए। हो सकता है आप माउंट एवरेस्ट के एकदम करीब हो, आप 8,300 मीटर चढ़ चुके हो, 20 ही मीटर बाकी हो, प्रयास मारिए। दूसरी बात, और प्रयास मारने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप इसमें देखेंगे तो इवन इन्होंने भी बोला है, अल्लामा इकबाल ने, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे
बता तेरी रजा क्या है। यहां कवि क्या कह रहा है कि आप इतने बड़े बन सकते हो, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी हो गए, अगर आप देखें शिवाजी महाराज हो गए, जैसे आप देखें संभाजी महाराज हो गए, मंगल पांडे हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, महाराणा प्रताप हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, अशफाकुल्ला हो गए, बिस्मल खान हो गए, मीन्स अबुल कलाम आजाद जी हो गए। इनसे समाज, गांव और प्रोफेशनल पूछते हैं, बताओ भाई तेरे को क्या चाहिए, एंड हर आदमी हर समय सरप्राइज होता। और संदीप जी, ये सारे लोग जिनका नाम लिया, ये हाड़ मास के सामान्य से नागरिक हैं। मतलब इनमें ऐसा कोई नहीं था जो 20 फीट लंबा होता, 300 किलो का होता। सब सामान्य से नागरिक थे, हमारे आप जैसे खाते पीते थे, और इन्होंने इतिहास रच दिया। तो मेरा यही कहना है, इतिहास आपका वेट कर रहा है, अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, जितनी जल्दी हो सके उसको आप अपने नाम करिए। होप this my message will useful to all people. Thank you very much for giving opportunity to me, and thank you, be are with me. Thank you.